Welcome to you in 11th lecture of haloalkane and haloarine. Their topics: nucleophilic substitution and mechanism of SN1, SN2 reactions. First we go nucleophilic substitution. उससे पहले हम लोग जान लें what's are substitution reactions. The substitution, also called displacement reaction. Clear? What means a substitution reaction? Those reactions in which an atom or group of a compound is replaced by another atom or group to produce new substance, new compound is called substitution reaction. ठीक, आइए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर a reaction in which, जैसे कि यहाँ पर जो है आपका ये AB है, इसको C से हम रिएक्ट करा रहे हैं और बन रहा है AC plus B. यहाँ B को C से रिप्लेस करा दिया गया है. मैंने क्या बताया आप? A reaction in which an atom or group of a substance or compound is replaced by another atom or group to produce new compound is known as substitution reaction. Clear? Like this is CH3, CH2Cl reacts with NaOH. Clear? Hence this chlorine is replaced by OH. They are CH3, CH2OH and NaCl. It is known as substitution reaction. In the same way like this, CH3, CH2, CH3 reacts with bromine to form CH3, CH2Br, NHBr. Hence one hydrogen atom replaced by bromine. Hence chlorine is replaced by OH group. These are called substitution reactions. Now, substitution reactions are of two types. These are of two types: nucleophilic and electrophilic substitution. And they are nucleophilic substitution. इनको शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिखते हैं यहाँ पर SN and they are SE. SN means nucleophilic substitution. SE means electrophilic substitution. Nucleophilic substitution again two types: SN1 and SN2. And the same, it is of also two types: SE1 and SE2. ये 1 और 2 की जो मीनिंग है, इसे लोग कहते हैं यहाँ पर यूनिमोलिकुलर एंड बाईमोलिकुलर. इट इज कॉल्ड यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड इट इज कॉल्ड बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. Same way, SE1 is known as unimolecular electrophilic substitution and SE2 is known as bimolecular electrophilic substitution. Clear? Electrophilic substitutions हम लोग aromatic compounds में देखेंगे, haloarenes में इसके reactions मिलेंगे. यहाँ हमारे पास nucleophilic substitutions हैं, पहले इनके बारे में देखते हैं हम लोग haloalkanes की properties के लिए. क्लियर? यहाँ पर मैं बता दूं आपको 1 जो 2 मीनिंग लगी क्यों लगी हुई है. यहाँ देखते हैं जो रिएक्शंस हैं इनमें स्लो स्टेप कौन सा है. ध्यान रखें, रिएक्शन का जो स्लो स्टेप होता है वहीं से रिएक्शन की वेलोसिटी रेट को डिटरमाइन किया जाता है. उसे कहते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप. स्लोवेस्ट स्टेप इज कॉल्ड रेट डिटरमिनिंग स्टेप.
In slowest step, only one species is present, then it is called unimolecular. And if two species are present, then it is called bimolecular. Clear? ये आपका था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में. Now another topic, mechanism of SN1 and SN2 reaction. आइए देखते हैं हम लोग. Mechanism of SN2 reaction. Clear? SN2 means bimolecular nucleophilic substitution. ये SN2 की मीनिंग, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं हम लोग. फर्स्ट वी टेक वन एग्जांपल. इसको वैसे हम लोग नॉर्मली इस प्रकार से लिखते हैं. यहां जो न्यूक्लियोफिलिक हमारे पास में, हाँ अब ये भी ध्यान दीजिएगा, इन्हें न्यूक्लियोफिलिक क्यों कहा गया है? इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस attacking reagent is nucleophilic reagent, nucleophile. In electrophilic substitutions, attacking reagent is electrophile. आपने 11th में पढ़ रखा हुआ है nucleophile and electrophile. वहां पढ़ा है आपने attacking reagents are two types, nucleophilic reagents and electrophilic reagents. वहां आपने पढ़ा था nucleophilic reagents को हम लोग नॉर्मली यूं लिखते थे, उनका सिंबल था, और इलेक्ट्रोफिलिक के लिए ये सिंबल था. यदि किसी रिएक्शन में अटैकिंग रेजेंट न्यूक्लियोफिलिक है, देन रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन. इफ अटैकिंग रेजेंट इज इलेक्ट्रोफिलिक, देन रिएक्शन इज सेड टू बी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन. यहां पर बायोमोलिकुलर की मीनिंग क्या हो गई? इन रेट डिटरमिनिंग स्टेप्स two species are present. Nucleophilic means attacking a reagent is nucleophilic or nucleophile. Clear? Nucleophile कौन होता है? A reagent on which electron lone pair is present. Clear? Substitution की मीनिंग क्या है आप पढ़ ही चुके हैं. आइए देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल. जैसे कि ये देखिएगा, this taken methyl chloride, it reacts with NaOH. या सिंपल हम लोग OH माइनस ले लेते हैं. दिस इज nucleophile. Clear? It has electron lone pair. Hence Cl is replaced by OH. This attacking reagent is nucleophilic. This nucleophile attack on the substrate methyl chloride to form methyl alcohol. इसके मैकेनिज्म देखते हैं हम लोग यहां पर. पहली बात तो ध्यान रखेंगे, this reaction completed in only one step. How? देखें, CH3Cl को हम लोग इस प्रकार से लेकर के चल रहे हैं. This is CH3Cl. Clear? ये CH3Cl है. This is clear. Hence, OH minus attacks on this reaction. इस सबस्ट्रेट पर ये अटैक कर रहा है हमारे पास. या Cl इधर होगा तो OH माइनस इधर से अटैक करेगा इन दिस वे. ठीक है ना? यदि मान लीजिए इधर हमारे पास जुड़ा हुआ है तो ऐसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये हमारे पास OH माइनस अटैक कर रहा है इन दिस वे. यहाँ पर हम लोगों ने ये बॉन्ड्स की 3 लाइन शो की हैं. ये आपको मालूम है सिंपल लाइन क्या होती है? बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द plane of paper. This is coming out from the paper and this is
इनसाइड द पेपर, या कह सकते हैं टुवर्ड्स ऑब्जर्वर अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर बॉडी। ये आप 11th में पढ़ चुके। क्लियर? इसको हम लोग यहाँ से बेस से शो करते हैं, वैसे इस प्रकार से बेस से शो करते हैं, सॉलिड वेज एंड डेंस वेज। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको मालूम है दिस इज अ पोलर बॉन्ड, Cl is more electronegative than carbon, so they are slightly negative charge and slightly positive charge is present. Hence electron pair displays towards carbon to chlorine. बट ये पोलर होने के कारण ऐसा नहीं है कि बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, बॉन्ड इज नॉट ब्रोकन, क्योंकि यहां H है हमारे पास में, तीनों H के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। C और H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत अधिक डिफरेंस नहीं होता है, तो ऐसे में ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है हमारे पास में एक लिमिट तक जो डिस्प्लेस होता है, मगर क्लोरीन के पास शिफ्ट नहीं हो पाता है। अब देखिए OH के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर्स प्रेजेंट। क्लियर? It is nucleophilic species. It attacks on this. It attacks on this center, on the positive center. Clear? और जब ये बॉन्ड यहां अटैक करता है उस समय कंडीशन क्या, ध्यान दीजिएगा, ये कंडीशन डेवलप होती है कुछ देर के लिए। दिस इज अ स्लो स्टेप, दिस इज अ स्लो स्टेप, क्योंकि यहां पर ये जो है, अब देखिए दो केसेस एक साथ हैं, ये क्या कर रहा है, ये इसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है। इट ट्राई टू बॉन्ड फॉर्मेशन विथ कार्बन एंड द सेम मोमेंट कार्बन क्या कर रहा है, टू ब्रेक बॉन्ड विथ Cl। दोनों एक साथ हमारे पास में, और जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो वही स्लोवेस्ट स्टेप होता है। Hence two species are present, 1 and 2. So it is called bimolecular, and this attacking reagent is nucleophile, so it is nucleophilic reaction. Clear? अब जब इसके हमारे पास ध्यान दीजिए, it is more nucleophile than this. तो जब ये अटैक करता है तो एक साथ हमारे पास यहाँ पे क्या है, ध्यान दीजिएगा कि कार्बन है, सॉरी, इस कार्बन के पास आप देख रहे हैं 5 ग्रुप्स हैं, 5 ग्रुप्स हैं, 1 2 3 4 5, बट कार्बन हैज 4 वैलेंसी। 5 ग्रुप जुड़े रहे, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, तो तुरंत क्या होता है, यहां फास्ट स्टेप होता है, फास्ट स्टेप। जैसे ये बॉन्ड आपका बनाता है वैसे ये बॉन्ड ब्रेक होना शुरू होता है, ठीक? तो इट इज द कंबाइनिंग ग्रुप, इट इज द लीविंग ग्रुप, और इसके बॉन्ड बनाते ही Cl आपका अलग हो जाता है। क्लियर? और कार्बन के साथ क्या अटैच हो गया आपका, OH ग्रुप, ये आपका ग्रुप अटैच हो गया, ये आपका। क्लियर? ये ग्रुप आपका आ जाता है। इट इज द फाइनल प्रोडक्ट। This is formed for some moments only, so it is called transition state. Transition state कहलाती है। क्लियर? ये फास्ट स्टेप में कभी भी किसी भी रिएक्शन के वेलोसिटी का मेजरमेंट नहीं होता है,
स्लो स्टेप में मेजरमेंट होता है, इसे कहते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप। यहाँ दो स्पीसीज हैं, देयर टू स्पीसीज, सो इट इज कॉल्ड बाइमॉलिक्यूलर। हम लोगों ने पिछले वीडियो में कहीं पढ़ा था ऑप्टिकल एक्टिविटी, वहां लास्ट में लोगों ने पढ़ा था रिटेंशन, इन्वर्जन, रसमाइजेशन। आप देखें, इन द केस ऑफ SN2 रिएक्शन, प्रोडक्ट इज ऑलवेज इन्वर्जन प्रोडक्ट, क्योंकि देख रहे हैं Cl इस साइड में जुड़ा हुआ है और जो OH जुड़ा रहा है आपका इस साइड में जुड़ रहा है, ऑन द अदर साइड, तो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्जन। क्लियर? द प्रोडक्ट इज इन्वर्जन प्रोडक्ट। यहां ध्यान रखेंगे, ये रिएक्शन आपका जो है प्राइमरी हैलाइड्स में इजीली होता है, टर्शियरी हैलाइड्स में नहीं होता है। इन डिफरेंट हैलाइड्स हम लोग देखें, CH3X, फिर 1 डिग्री हैलाइड यानी प्राइमरी, 2 डिग्री हैलाइड्स एंड टर्शियरी हैलाइड्स। ये है इनकी एक्शन ऑफ रेट। इट इज वेरी इजी इन मेथाइल हैलाइड, फिर इसमें बहुत इजी, ठीक है ना, और इनमें थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि यहां पर क्या होगा, 3 डिग्री हैलाइड में 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा जो अधिक स्टेबल है, ध्यान रखिएगा, ड्यू टू स्टेबिलिटी। डिफरेंट हैलाइड्स में भी ध्यान रखिएगा, I- में रिएक्शन बहुत फास्टली होता है इन दिस वे। Now we go another example of SN1 reaction. Mechanism of SN1 reaction. SN1 means unimolecular nucleophilic substitution. It means unimolecular means only one species is present in rate determining step, that is Insulovich step, in nucleophilic substitution. We take an example. This is tertiary butyl bromide. Reacts with nucleophile hydroxylene to form tertiary butyl alcohol and remove bromide ion. This is SN1 reaction. सेकेंडरी में भी SN1 चलता है। इसके मैकेनिज्म के स्टेप देखते हैं। इट इज कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स। फर्स्ट वी गो इन फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप देखिएगा। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड प्रोड्यूसेस टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन easily due to plus I effect. Plus I means positive inductive effect in this way.
hence this is also polar like methyl chloride. So they are negative and positive charges developed on the bromine and carbon. Hence electron pair slightly displaced towards bromine. 11th में आप पढ़ चुके हैं इंडक्टिव इफेक्ट, which is of two types, plus and minus, positive and negative. You know, alkyl groups give plus I effect. There are three methyl groups are attached with this carbon atom, which produce plus I effect. इससे क्या होगा प्लस आई इफेक्ट में? प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रेपेलिंग ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन को रेपेल करते हैं. इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो दिस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर हटाने की कोशिश करते हैं. जो ऐसे में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस ऑन द कार्बन, by which electron pair between carbon and bromine easily displaced towards bromine and breaks. This bond easily displaced, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन इसके इधर भागेगा और ये ब्रेक हो जाएगा. Then it gives tertiary butyl carbocation. ये टर्शियरी ग्रुप आपको मालूम है, कार्बोनियम आयंस में अधिक स्टेबल होते हैं. यहां पर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, जहां बॉन्ड ब्रेक होता है इसमें टाइम लगता है, इसी को कहते हैं हम लोग स्लोवेस्ट स्टेप. स्लो स्टेप, दिस इज a rate determining step. Hence only one species is present. पिछले हमने देखा था two species are present, methyl chloride and also OH minus. So it is only one species. So it is called unimolecular reaction. ये आपका था टर्शियरी ब्यूटाइल carbocation. Now in the second step, nucleophile attacks on this to form final product. Second step, nucleophile attacks on carbocation to form final product. In this way. Now OH minus attacks. This is ionic reaction between two ions, so it is fast reaction. So what will be product? OH minus किधर attach होगा, इधर या इधर? Both chances are equally possible. There may be product in this way or maybe in this way. क्लियर? आपका जो कंपाउंड था उसमें वो इधर था हमारे पास में, तो ये रिटेंशन हो गया, कॉन्फ़िगरेशन इज रिटेन्ड. यहाँ क्या हो गया? कॉन्फ़िगरेशन इज इन्वर्टेड, the inversion of configuration. So it is retention product. It is
इनवर्जन प्रोडक्ट। इक्वली बोथ आर फॉर्म्ड, एक डेक्स्ट्रा है तो एक लीवो, इस प्रकार से। ठीक है, क्लियर? तो ऐसे में हम लोग कहते हैं कि यहां पर रेसमिक मिक्सचर मिल रहा है, रेसमाइजेशन। तो हमने बताया था आपको कि इन SN2 रिएक्शन product is always inversion product. There are always inversion of configuration, but in the case of SN1 reaction, may be retention product, may be inversion product. In other words, we can say racemization products are formed, racemic products are formed. अब बात ये उठती है कि यहां पर टर्शरी ग्रुप के साथ में SN2 रिएक्शन पॉसिबल क्यों है? आइए वो देखते हैं। यहां पर पहले बता दूं मैं आपको, जो आपके SN2 रिएक्शंस हैं उनके लिए क्या था, जो टर्शरी ग्रुप है वहां पर ये इजी होता है 2 डिग्री में उससे कम, और फिर 1 डिग्री में उससे कम, और CH3X में उससे कम, जस्ट अपोजिट टू SN2 रिएक्शन। क्लियर? अब SN2 रिएक्शन जो है आपका 3 डिग्री 2 डिग्री में क्यों मुश्किल होता है, उसका मालूम क्या रीजन है? ड्यू टू hindrance of alkyl groups. Hindrance means steric group. Hindrance और steric effect कैसे, आइए वो देखते हैं। देखिए जैसे न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास में, ये कार्बन, ध्यान समझेंगे, ये आपका मेथाइल ग्रुप था हमारे पास में आपका, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक कर रहा है। ठीक, यहां पर ये साइड खाली पड़ी हमारे पास में, ये आपके कैसे थे, हाइड्रोजन एटम्स बहुत ही स्मॉल होते हैं। ठीक, स्पेसेस खाली पड़ा हुआ है, ये इजीली आकर के हमारे पास में यहां अटैक कर सकता है। क्लियर? आइए देखते हैं 1 डिग्री हालाइट में, 1 डिग्री हालाइट में भी इजी होता है। ये 1 डिग्री हालाइट है, यहां भी ये साइड खाली पड़ी हुई है, आकर के आराम से जुड़ सकता है। बट इन द केस ऑफ 2 डिग्री हालाइट्स, आइए देखते हैं। ये बल्की ग्रुप हो जाते हैं। ये यहां पर जो साइट है हमारे पास में आपकी, वो कम हो जाती है, दोनों से दबने लगता है, घिरने लगता है। टर्शरी में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये CH3, ये CH3C टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड था। अब यहां पर ये हमारे पास में जो बल्की ग्रुप्स हैं, इस कार्बन को चारों तरफ से घेरे रहते हैं। ऐसे में जो न्यूक्लियोफाइल होता है हमारे पास में, इसके लिए अटैक करना यहां मुश्किल हो जाता है। ठीक, तो ये आप करिए, यहां टर्शरी ग्रुप में, सेकेंडरी ग्रुप में क्या होता है, दिस सेंट्रल कार्बन इज सराउंडेड बाय बल्की ग्रुप्स। ये हिंडर्ड कंडीशन में होता है, छिपा हुआ होता है, स्टेरिक इफेक्ट, इसलिए न्यूक्लियोफाइल का अटैक डिफिकल्ट हो जाता है। ड्यू टू दिस रीजन न्यूक्लियोफाइल अटैक इज इजी इन द methyl halides और प्राइमरी halides।
इसलिए उनमें आपका SN2 होता है, यह SN2 पॉसिबल नहीं है आपका। क्लियर? ये हम लोगों ने SN2 SN1 के मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ, स्पेशली केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स। क्लियर? इंतजार करिए नेक्स्ट वीडियो का। ओके।